to serve protocol serve in Delhi, and this is over Indian Diwan Association. And I'm very thankful to all of you who come here. Now start our session with the prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ईश्वर सभी का भला करे, सभी के लिए अच्छा करे, हम सब सुखी रहें, यही माँ भगवान से प्रार्थना है, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं दिल्ली में, और हमारे माननीय हमारे रिस्पेक्टेबल सर आए हैं और इतनी मीटिंग कर रहे हैं, सबका स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी मीटिंग बहुत ही अच्छी और उद्देश्यपूर्ण रहेगी, और हम जितने भी चीज़ों की बात करेंगे हो सकता है कि बहुत अच्छे हो इसके रिजल्ट निकले। इसी शुभकामनाओं के साथ इस मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। सबको गुड लक। आप सबका हृदय से धन्यवाद। यहाँ पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सबको जानकारी है कि हमारे हमारे डॉक्टर शिव प्रसाद जी फाउंडर, हमारे प्रेसिडेंट, इस संगठन की जान है, उनकी ओर से राइटिंग में हमारे को वेलकम स्पीच जो लिखा है इन्होंने, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ द एसोसिएशन कमिटेड फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, I, Dr. Shiv Prasad, founder president, welcome all the delegates attending this conference, this meeting from the all corners of the country. I'm sure your seriousness towards the rights of the persons with disabilities and to keep the united. We shall maintain your wishes to set the goals to reach out for the success. Since the beginning, our association, representing now more than 23,000 persons with disability, they have joined hands for the upliftment of their lives. They are facing different types of the problems in the all space of the life. The association, with the help of all other groups, government, other associations, and the groups, shall achieve this goal with the united efforts of all of us. That this meeting shall achieve its goal with the active involvement of all of us. I especially thank to Advocate Rajkumar Mukkar, as State Commissioner for the Person with Disabilities of Haryana, for his all-hearted support and advices for running the association smoothly, and also thankful to Mr. R.K. Brother and Shri Vikram Srivastava, who have contributed to this association till today. So, after the formal welcome by Shri Dr. Shiv Prasad, I will now request Mr. Brother is coming. That was the issue from his side. So I start from my side. Hindi, English, mix, mix. तो हमारा जो एसोसिएशन है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत अपने बारे में बताऊँ तो इतना ही है कि बीइंग कमिश्नर डिसेबिलिटी हरियाणा, दिव्यांगों के इशूज़, और मैं खुद भी हार्ड ऑफ हेयरिंग हूँ, दोनों कानों में मेरा मिशन है, 50% hearing impaired, and all of us are suffering from this or that
So, beginning with the issue that the rights of the person with disability, which we are informally discussing here, and we feel in our day-to-day life, cannot be set at par with others. But to talk of the equality or equity or big words which are used by United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability or the Rights of Persons with Disabilities Act, लेकिन ये सच्चाई है कि ये जो बड़े बड़े आइडियल्स हैं, बड़े बड़े गोल्स हैं, बड़े बड़े एक पैरामीटर्स रखे हुए हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से एकदम और ये तब है जब कहते हैं कि पूर्ण तो परमात्मा, only God is full, all other persons, whether they are not regarded among the population of 2.68 crore which was calculated in the census of 2011, may not be their calculation there, but every person is incomplete. I don't know Kannada, then I am having disability in Kannada. If I cannot fly train, then I am having the disability to run the train. I can't fly aeroplane. So disability, though in practical life is regarded physical or intellectual 21 times, but every person is incomplete. but इसके बावजूद भी फीलिंग ये है कि मैं तो पूर्ण हूँ और मुझे तो कभी अपूर्ण होना नहीं। आई एम नॉट पर्सन, तो मुझे इनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? ये एक दुर्भाग्य से हमारे इस समाज में, हमारे परिवारों में, हमारी सरकारों में, हमारी अदर जो समाज को रिप्रेजेंट करने वाले सोकार्ड इंडिविजुअल हैं और चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्म या सोसाइटी एंड व्हाट्स देयर स्टेटस विल बी, बट दिस इज एन हार्ड फैक्ट। ये एक समाज की सच्चाई है जिसको बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि हम सारे इसको डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो आने वाले सारे लोग हैं, वी आर आइदर एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज, वी आर far much in better position than those who were born in remote villages. They are not having the schools to such an extent that they require braille, but they don't have. They require sign language, they don't have. They require psychologist, they require accessibility, they require vehicle, they require sensitivity. What to talk of the inclusion? Inclusion तो भाड़ में गया है, बहुत बात की चीज़ है। तो ये जो बेसिक बातें हैं उसको अवेलेबल नहीं हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हम सबको वो मिला, हमने कोई कोर्स किया, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करा और हम कहीं न कहीं अपनी लाइफ में गोल अचीव कर पाए, सेटल हो पाए और उसके कारण से हमारी फैमिलीज को भी हम फाइनेंशियली और मॉरली हर ढंग से सपोर्ट दे पाए। लेकिन कल्पना कीजिए उन लोगों की, तो क्या हमारी एसोसिएशन केवल एम्प्लॉई तक सीमित रहेगी? एम्प्लॉइज की बहुत समस्याएं हैं। अभी हम कल से डिस्कस कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट एक इशू है। दुनिया भर के जजमेंट पास हो चुके कि भाई 4% रिजर्वेशन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नॉट वर्टिकल। वो कहते हैं कि 10 पोस्टें निकली हैं, 10 का 4% निकालो, और अभी 50 का 4% निकालो तो वो भी नहीं मिलता काम खा की बात है। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, 126, 51 and 76 4 आर द रिक्रूटमेंट भी नहीं हो पाती। उसमें भी बार बार डिपार्टमेंट्स अपने गलती ऐड करते हैं और जो हमारी रिक्रूटिंग एजेंसी हैं जो कि अपने लाइसेंस का इंटरप्रिटेशन करती हैं। फिर उसके बाद में ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है, उनमें कितनी तरह के धक्के खाने पड़ते हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं कन्वेंस हाउस को लेकर के, बेनिफिट्स को लेकर के, है ना। तो वो
सारे एम्प्लॉय रिलेटेड इशूज हैं, those are also required to be taken care of during this meeting, and I shall suggest कि though I have been designated as associate president and CEO, बट सच्चाई तो ये है कि एसोसिएशन के लिए तो मैं नया ही हूँ, मैं बच्चा हूँ। मैं तो हमारे श्रीवास्तव जी जैसे लोग बैठे हैं, वसीम जी जैसे लोग बैठे हैं, जो पुराने लोग और जिन्होंने जीवन में इसमें खपाया है, इसलिए मैं उनके सामने मैं बच्चा हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है, तो उस जिम्मेवारी के एहसास को ध्यान में करते हुए तो मैं निवेदन करूँगा कि हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और मंडे को हमने सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट को अपना रेजोल्यूशन देना है, उसकी कॉपीज हमको हैंड ओवर करेंगे। यूपी प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी मीटिंग प्रयास करने को भी तय नहीं हो पाई, क्योंकि उनके ऑफिस में जो फैसला थी वो ये कि 4 महीने पहले पीएम के प्रोग्राम निश्चित हो जाए। कोई बहुत अपवाद होगा तो ही वो कोई माइनर सा चेंजिंग, कोई डेथ होगी, कोई राष्ट्रपति कोई कुछ हो जाए, तो प्राइम मिनिस्टर के लेवल की बातें हैं, तो वो हमको समय नहीं मिला। लेकिन मेरे ऑफिस में समय हमको मिलने की संभावना भी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, SSCPD है, बाकी कुछ और लोग हैं, तो उनसे हम अपना जो रेजोल्यूशन है वो प्लस हम मीडिया में भी देंगे और इसको हाईलाइट अपने ग्रुप्स में भी सब जगह पर करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एम्प्लॉइज को लेकर जितनी तरह के इशूज़ हमको पेश आ रहे हैं वो सारे इसका पार्ट एंड पार्सल हमको बनाना है। विक्रम जी, आप बीइंग सेक्रेटरी देख रहे हैं ना, रेजोल्यूशन आपने बनाना है, ड्राफ्ट करना है, ये चीज़ें उसमें डालनी है। तो हम अभी भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं जो एम्प्लॉय रिलेटेड हैं, ताकि उनको अपने उसमें रेजोल्यूशन के अंदर रख सकें। जो हमारा दूसरा सेशन होगा तब तक हम कोशिश करते हैं कि वो रेजोल्यूशन आ जाए और उसको हमारी मीटिंग पास करें। इसके अलावा जो अदर दिव्यांग हैं उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे इशू हैं। पहला है डिग्निफाइड लाइफ, रिस्पेक्टफुल लाइफ, ये RPWD एक्ट में लिखा हुआ है। उसका जो बेस है, जो इसको प्रियम्बल बोलते हैं, कोई भी एक्ट होता है उसका एक प्रियम्बल होता है, पहला पेज, ये इसका एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो रिस्पेक्टफुल लाइफ तब बनता है जब बंदा हाथ ऐसे नहीं करता, ऐसे करता है, जब वो गेन करता है, अटेन करता है, कोई अपने रोजगार को अपने पेट भरने के लिए भीख नहीं मांगता, वो अर्न करता है। तो अर्निंग के लिए जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसमें गवर्नमेंट सेक्टर एक और में हमारा देश पता नहीं क्यों वाइट कॉलर जो जॉब्स हैं उनकी ओर ज़्यादा भागता है। अदरवाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट सेक्टर आज रोड पे बैठा हुआ रेडी लगाने वाला, खड़ी लगाने वाला 2,000 4,000 रुपया और दिल्ली में तो और भी ज़्यादा कमा के ले जाता है, 10,000 रुपये कमा के ले जाता है। तो हमारे दिव्यांग को भी अगर ऐसी प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकें, मोबाइल कैसे ठीक करना, टेक्नोलॉजी आ गई, छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, स्किल डेवलपमेंट हो सकती है, और इसी तरह यानी कुल मिलाकर इसकी प्रतिभा को पहचानना है। हर आदमी कोई ना कोई काम कर सकता है, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। एवरी पर्सन कैन डू एवरी जॉब, बट एवरी पर्सन कैन डू समथिंग। तो जो वो कर सकता है, भी हाथ नहीं है, पैर है ना, मुंह है ना, आंखें हैं ना, इनका यूज करके क्या किया जा सकता है। अब रविंद्र जैन भी थे, महाभारत 100% ब्लाइंड, वो देख नहीं सकते, लेकिन विजुअल इम्पेयर्ड होने के बाद कभी हावी नहीं होने दिया। तो ऐसे लाखों उदाहरण हमारे सामने हैं, बिल्कुल देखते हैं, और हम भी कौन सा कम है, रविंद्र जैन ने उससे मुझसे कम कौन सा है। तो हम सब भी लोग अपना जीवन जीते ही हैं ना, और अच्छे से जीते हैं, और अपने जो भी हमारा दिव्यांग किसी भी फील्ड में है वो आइडियल लाइफ जीता है और आइडियलिज्म वो एस्टेब्लिश करता है। ये हम सबको पता है कि उनके जो आउटपुट है, रिजल्ट्स है, वो बेटर आता है, क्योंकि बाकी लोग तो अपना पैन रखा, चश्मा रखा, घूमने चले गए। रिप्रेजेंट इन दी ऑफिस बाई वे ऑफ स्पेक्स, pen is also open. It seems that the employee has been lost, तो घूम रहा है, but person with disability because due to
मोबिलिटी, लैक ऑफ मोबिलिटी, तो वो अपनी जगह पे है, वो काम करेगा। तो जनरली इट इज फाउंड नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट आल्सो द प्राइवेट एंड निजी सेक्टर, कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो हमको ज़्यादा देते हैं। तो उनकी जो स्किल है वो किसी भी फील्ड की है, वी हैव टू एनरिच इट, ट्रेन, मोटिवेट, प्रोवाइड इवन अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज है। आज देश में बड़ा अजीब काम है, क्योंकि जहाँ लोग चाहिए वहाँ लोग नहीं है। अदरवाइज बेरोजगारी बहुत है। लोग कहते हैं कि क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और वो ढूंढते फिरते हैं या कोई आदमी दे दो। अब मैं तो क्योंकि कमिश्नर हूँ, तो मुझे लोग पूछते हैं कि सर हमको दो नाम गुड़गांव में चाहिए। मैं हरियाणा से हूँ, तो गुरुग्राम में, गुड़गांव, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप से, हमारी बहुत बड़ी टाउनशिप है। तो दे डिमांड कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हमको दे दो, और पर्सन विद डिसेबिलिटी मिलते हैं, कहते हैं कि हमें जॉब दे दो। तो देरी nexus is required, a chain is required, a bridge is required to meet out the requirement। वो मांगते हैं और इनको चाहिए, तो उनकी जो ब्रिज है वो मीट आउट तब होगा जब उनको ट्रेन मिलेंगे, उनको स्किल्ड मिलेंगे, तो वो ट्रेन नहीं करने वाले। तो क्या हमारी एसोसिएशन अपने एक्सपेंड कर सकती है? ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी तक CCPD के पास हम कंप्लेंट्स लेके जाते हैं, और खासतौर पर हमारे बैंक एम्प्लॉय के बारे में से बढ़ाकर रिटायर्ड बैंक, तो इस नाते इनके वहाँ भी लिंक्स हैं, तो वो एक चल रहा है। और ज़्यादातर हमारे सेक्रेटरी साहब भी, जो जनरल सेक्रेटरी साहब, वो भी बैंक में, तो बैंक का ज़्यादा चल रहा है, ट्रांसफर से रिलेटेड और इस तरह से ग्रीवेंस उनके पुटअप करना कंसर्न अथॉरिटी के सामने, दैट इज अ गुड थिंग। बट क्या हमें यहीं तक सीमित रखना है, और क्या हमें कर्नाटक की सीमाओं के अंदर ही रहना है? एक विचार करने का विषय कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी एसोसिएशन की आवाज़ पूरे भारत में और भारत का हर दुनिया में इसको अपनी मांग समझे, अपनी एसोसिएशन समझे। क्यों? क्योंकि उसकी बात वहाँ रखी जाती है। वहाँ पे कुछ प्रॉपर लोग हैं जो सेल्फलेस मोटिव के साथ में कम टाइम होते हुए भी बैंक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे सोनू कुमार जी भी हमारे गवर्नमेंट के अफसर हैं, ऐसे बाकी लोग हैं। तो समय कम है, लेकिन उस समय का भी हम कैसे अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। और फिर हम ही को भी क्यों नहीं हो सकता कि हमारे से, या आज नहीं भी आए होंगे, क्योंकि बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमारी AGM हमने यहाँ पर रखी, और शायद मुझे बताया गया कि फर्स्ट इस तरह का प्रयास हुआ है। तो किसी भी संगठन के लिए संख्या महत्व नहीं रखती कि कितनी संख्या में लोग आए। उनको आए हैं योगीराज श्री कृष्ण जी ने जो निर्देश दिया, तो एक श्रोता थे, एक के ध्यान में आ गए, श्रोता तो बहुत सारे थे, 18 अक्षोणी सेना खड़ी थी, उनके बीच में योगीराज कृष्ण जी ने कहा, लेकिन समझ में एक की आ गई अर्जुन की, और जब उसके आ गई तो चेंज हो गए, जमाना बदल गया। तो ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी संख्या में आ पाते, लेकिन जितने भी आए हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भी हम एक तय करें कि हमारी जो सेंट्रल बॉडी है उसमें 11 लोग होंगे, एटलीस्ट 11 लोग, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन 11 लोग मिनिमम रहे। एक प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे ट्रेजरर हैं, है ना, सेक्रेटरी है, हमारे ऑडिटर हो सकते हैं, हमारी बॉडी के और मेंबर हो सकते हैं, पैटर्न हमारे पास नहीं है ना। तो ऐसे 11, ऐसे हर स्टेट के अंदर भी। तमिलनाडु है, क्यों नहीं होनी चाहिए हमारी यूनिट? तो हम तमिलनाडु के प्रेसिडेंट और उनके जिम्मे लगाए। अच्छा, और इनकी भी जो सेंट्रल लीडरशिप है, इनके जिम्मे क्या लगाए? ये 11 या 15। आपके जिम्मे 2 स्टेट हैं, इन स्टेट्स की यूनिट आपने खड़ी कर दी है, या 3 स्टेट्स हैं, आपने इन स्टेट्स के अंदर जिम्मेवारी देके अच्छे लोग पकड़ने हैं और उनको उस स्टेट की यूनिट बनानी है। बीइंग फिजिकल डिसेबिलिटी, हम लोग उनकी मूवमेंट नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है, आज वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस सारी ऑनलाइन हो रही हैं, तो हम इसका यूज करके